Hello friend, good morning. Myself, Mr. PG Bhaviskar. I would like to welcome you in the presentation of Class 10 Mathematics Quadratic Equation. Friends, quadratic equation, you are already familiar with different types of polynomials. So before this quadratic equation, first tell me what is by quadratic equation. Quadratic equation क्या होता है? So in a previous session or in our chapter polynomial, we already seen the different types of polynomial. So what is by quadratic polynomial? So quadratic polynomial means a polynomial of degree 2. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. जिस polynomial का डिग्री 2 होता है उस polynomial को हम लोग quadratic polynomial बोलते हैं, उसको quadratic polynomial बोला जाता है. Correct? So in this chapter is a quadratic equation. So quadratic equation means if we equate the quadratic polynomial with 0, that means we get two sides. An equation have two sides, left side and right side. So polynomial is the only expression, only one side. So if we equate this polynomial with 0, we get a quadratic polynomial. Correct? So again we will see what is by quadratic polynomial. You have studied different type of polynomials. One type was the quadratic polynomial. हमने प्रीवियस चैप्टर 2 में पोलिनोमियल चैप्टर में देखा है डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल्स हमने स्टडी किया है. उसमें one of the type was a quadratic polynomial. And quadratic polynomial, what is general form of quadratic polynomial? General form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c and a is not equal to 0. Such a form of polynomial is called a quadratic polynomial. And a is not equal to 0. It is the most important condition. Because if a is equal to 0, suppose if a is equal to 0, then this polynomial become what? Ax square. If we put a is equal to 0, then your first term becomes 0. And what remain only? We get only bx plus c. We get only bx plus c. Now tell me what is the degree of this polynomial? So here degree of this polynomial is here 1 because highest power of variable is here 1. So degree of this polynomial is 1 and this polynomial become a linear polynomial. That's why a is not equal to 0. In a polynomial here a is not equal to 0. If a is 0 then this become a linear. That's why here a is not equal to 0. So this is a general form of quadratic polynomial. X square plus bx, x square plus bx plus c is ax square plus bx plus c and a is not equal to 0. So this is a general form of quadratic polynomial. Okay. When we equate this polynomial to 0, यदि हम लोग ये जो quadratic polynomial है यदि 0 के साथ equate करते हैं तो we get a quadratic equation. So if we equate this quadratic polynomial x square plus bx x square plus bx plus c is equal to 0, then it become a quadratic equation because equation have two sides. So this become a quadratic equation. For example, 3x square plus 4x minus 7 is equal to 0. This is quadratic equation because this equation containing a quadratic polynomial. इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट साइड में है जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, उसका डिग्री 2 है. ओके. सो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन कंटेनिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So that's why this is a quadratic equation. Another example is 3y square minus 5x plus 4 is equal to 0. This is also quadratic because this equation containing here on left side 3y square, left side is what? 3y square minus 5x plus 4. And this left side containing a polynomial and which is a quadratic because its degree is 2. Its degree is here 2. 3y square minus here 5y plus 4. This is a quadratic polynomial in variable y. Okay. So here 5y. Okay. So this is a quadratic polynomial because its degree is 2. Okay. And that's why this equation is a quadratic equation. So in this way we will say more examples also.
Now again we are going to clear definition of quadratic equation. तो quadratic equation का definition हम लोग इसी तरह भी कर सकते हैं. A quadratic equation in a variable x, a quadratic equation in a variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. तो जो इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन अ वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सिंगल वेरिएबल मे बी एक्स, मे बी वाई और एनी अदर वेरिएबल. ओके, यू कैन टेक एनी वेरिएबल. सो this is a quadratic equation in a variable x. This is a quadratic equation in variable x and this is a general form of quadratic equation. ये जो है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं. और इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, दैट मीन्स x स्क्वायर टर्म इज हियर एब्सेंट because its coefficient is 0, then it becomes 0. So x square term is absent, then it not become a quadratic. So that's why it is not equal to 0. So one more examples. So 2x square plus x minus 300 is equal to 0 is a quadratic equation. Similarly, 2x square minus 3y plus 1 is 0. 4x square minus 3x square, 4x minus 3x square plus 2 is equal to 0. 1 minus x square plus 300 is equal to 0. These are the quadratic polynomial. Sorry, quadratic equation. These all are quadratic equation because in this equation containing a quadratic polynomial. इस equation में जो polynomial involve है वो quadratic है, इसलिए ये जो equation है quadratic equation है. Okay, और here okay, next we will see any equation of the form. ये अब ऐसे ही बोल सकते हैं any equation of the form px is equal to 0, px is equal to 0. ये px क्या होता है? where px is a polynomial of degree 2. ये px यानी कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये जो इक्वेशन है px is equal to 0, लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल px है और ये पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. डिग्री 2 मीन्स व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए. And is quadratic equation. Any equation of the form px is equal to 0 where px is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब यही बोलना है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए यानी कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होना चाहिए. ओके, बट व्हेन वी राइट द टर्म px in descending order of their degree, then we get the standard form of the equation. यदि ये जो px है इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें ये जो पॉलिनोमियल px है उसमें जो पॉलिनोमियल होती है उसका पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो यदि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सी अमंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है. सो दिस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. Your first equation is what? 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Now see here, what is the power of variable in first term? This power of variable in first term is 2. In second term, power of variable is 1. In third term, what is power of variable? वेरिएबल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहां पे वेरिएबल की पावर क्या होती है? हमेशा 0 होती है. जहां वेरिएबल नहीं कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर हमेशा 0 होते हैं. करेक्ट. सो हियर इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, 1, 0 एंड दिस पावर इज अरेंज हियर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पावर अरेंज की गई. पहले सबसे बड़ा पावर वाला, उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला. इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है. तो पावर ऑफ वेरिएबल इज हियर अरेंज इन डिसेंडिंग पावर इन अ डिसेंडिंग पावर. तो यहाँ पे ये पावर जो है डिसेंडिंग में लिखा है. सो दैट्स व्हाई दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई. करेक्ट. नाउ सी इन अ सेकंड पॉलिनोमियल योर सेकंड इक्वेशन इज व्हाट? 4x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Here what is the in a first term what is the power of variable? Power of variable is 1.
in second term power of variable is 2, third term power of variable is 0. Here the order of power of variable is not in a descending order. यहाँ पे ये ऑर्डर में नहीं है, ये 1 है फिर बाद में 2 है यानी कि बढ़ गए, बाद में 0 कम हो गया, है ना. सो ये ऑर्डर में नहीं है, तो वी कैन अरेंज इन अ डिसेंडिंग यानी कि आप लोग पहले बड़ा पावर वाला लिखना है, उसके कम पावर वाला इसी तरह अरेंज करना है. इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल. ओके, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, जो पावर ज्यादा है यानी कि 2 पावर वाला यानी कि स्क्वायर रूट टर्म वाला पहले लिखना है. तो हाउ टू राइट दिस पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट वी विल राइट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट मीन्स स्क्वायर टर्म. सो फर्स्ट वी विल राइट minus 3x square. Okay, then write the power of 1, that is plus 4x, then plus 2 is equal to 0. So we get this is a quadratic equation in standard form. तो इसी तरह ये जो यदि हमें पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम लोग इसी तरह उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब we can arrange the term in a descending power of variable, so we get a standard form. Okay, same way, see in a equation your third equation is 1 minus x square plus 300 is equal to 0. So this is not also not in the standard form. So how to write it? The first we will write the highest power of variable, that means which is highest power of variable term x square and it is minus, so we first write minus x square. Okay, then we will write in this example this 300x 1 minus x square plus 300x. So your next term will be what? 300x plus 300x. Okay, plus constant term is your 1 is equal to 0. So we get a standard form of quadratic equation. Okay, so in this way, if you are given any quadratic equation but it is not in standard form, then we will arrange the terms and write down in the standard form. Okay friends, are you understand? Okay, now again we will see, हमने देखा है, क्या देखा है, a quadratic, what is in by quadratic equation. तो quadratic equation का equation of the form, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, कौन से फॉर्म में, ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0 is called the standard form of quadratic equation. और इस फॉर्म को क्या बोलता है, standard form of quadratic equation. Here a means coefficient of x square and it is not equal to 0. coefficient of x square कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, other than 0 होना चाहिए. ओके, क्योंकि 0 हो गया तो आपका स्क्वायर टर्म एब्सेंट होगा, यानी कि आपका डिग्री जो है 2 नहीं रहेगा, और 2 नहीं तो वो इट बिकम्स अ लिनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी. दैट्स व्हाई इज नॉट इक्वल टू 0. सो हियर ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज व्हाट, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो होता है हमेशा ये इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, b जो है इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x होता है एंड c जो है इट इज अ कांस्टेंट टर्म होती है. तो हम लोग यदि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है तो हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो वी विल कंपेयर नाउ. तो व्हाट इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल गया, किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होती है उस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कोई भी इक्वेशन हमें यदि ऑर्डर में नहीं है तो हम लोग इसी तरह हम लोग पहले अरेंज कर रहे हैं ऑर्डर में, ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्म एंड इफ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म, यदि वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ दिस इज नॉट इन द फॉर्म देन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक है, और यदि ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, so on the so we will take example based on this topic. So your first exercise, very simple exercise 4.1. So first example is what, check whether the following are a quadratic equation. हमें चेक करना है कि नीचे दी गई जो इक्वेशन है
वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। तो वी विल चेक हियर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसलिए क्या करना होगा, ट्राई टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करना है एंड ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का प्रयास करना है। ओके, तो नाउ वी विल सिंप्लीफाई हियर। तो योर इक्वेशन 1 इज x plus 1 bracket square is equal to 2 into x minus 3. Now we will simplify it. तो सिंप्लीफाई का मतलब है यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में ये जो ब्रैकेट स्क्वायर है उसका एक्सपांशन लेफ्ट साइड में करना होगा, राइट साइड में ये 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। तो वी ऑलरेडी फैमिलियर विथ योर फर्स्ट आइडेंटिटी, हमें ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है ऑलरेडी, हमें पता है x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यानी कि x मीन्स फर्स्ट टर्म, y मीन्स सेकंड टर्म, यानी कि ये हम लोग वर्ड में भी बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे प्लस साइन 2 टाइम x इंटू वाई मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस वाई स्क्वायर मीन्स सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म देखना है और वैल्यू पुट करना है। तो इसी तरह हम लोग अभी ये x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन यहाँ पे we will write. Okay, so what is the x plus 1 bracket square here? Its expansion is square of the first term means x first term is your x, उसका स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी कि 2 इंटू x, आपका मिडल टर्म क्या होगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकंड टर्म 1 एंड 2 इंटू x इंटू 1 क्या होगा प्रोडक्ट, इट इज योर 2x प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर होता है 1। So we get the expansion of x plus 1 bracket square is x square plus 2x plus 1. Okay. Now on right side, multiply this bracket by 2. 2 into x, 2x. 2 into minus 3, minus 6. Okay. Now try to simplify it. अभी यहाँ पे simplify करना है. We can transfer all term from right side to left side. राइट साइड वाली सभी टर्म जो हम लोग लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करते समय अभी लेफ्ट साइड में ये जो राइट साइड में जो 2x प्लस है लेफ्ट साइड में आने के बाद वो माइनस होगा, ये -6 जो है वो लेफ्ट साइड में प्लस होगा। सो वी विल ट्रांसफर। तो योर ऑलरेडी लेफ्ट साइड इज व्हाट हियर, इट इज x स्क्वायर प्लस 2x plus 1. Left side is already your x square plus 2x plus 1. Now transfer this 2x from right side to left side. It becomes minus 2x and minus 6 become on left side 6. We get what remain here? Nothing is remain. That means 0. Okay. Now this x square term as it, because it is only one term. Now this plus 2x or minus 2x, plus 2x minus 2x cancel. It becomes 0. Now this plus 1 or plus 6, this sum become 7 on right side 0. So we get here x square plus 7 is equal to 0. And this is in the form of standard form of quadratic equation, x square plus bx plus c is equal to 0. और ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर टर्म है और इसका कोएफिशिएंट इसमें 1 है, तो वैल्यू ऑफ इज 1 हियर। इन दिस इक्वेशन हियर x term is absent. X term is absent, that means coefficient of x term is here. Coefficient of x is here 0. इसका मतलब इस इक्वेशन में x का टर्म नहीं है, इसका मतलब x का जो कोएफिशिएंट है 0 है। That means value of b is here 0 and c means constant term, that is 7. So that means this is in the form of x square plus bx plus c is equal to 0. इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपका x square plus 7 is equal to 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, विथ a का वैल्यू आपका है 1, b का वैल्यू आपका है 0, b टर्म एब्सेंट है तब उसका कोएफिशिएंट 0 होता है, और c का वैल्यू आपका है कितना है 7. ओके, सो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. That means your given equation, ये जो दिया गया इक्वेशन है, this is also quadratic equation. So therefore your given equation, this equation is also quadratic equation. Okay, तो very easy है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है.
सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग प्रयास करना है उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। करने के बाद यदि वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गए तो गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि उस फॉर्म में नहीं आता है तो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल सी अगेन एग्जांपल नंबर 2। योर एग्जांपल 2 इज x square minus 2x is equal to x square minus 2x is equal to minus 2 in bracket 3 minus x। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो ट्राई टू सिंप्लीफाई योर लेफ्ट साइड एज इट एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट, राइट साइड में यहाँ पे माइनस 2 इंटू ब्रैकेट है, सो वी शुड मल्टीप्लाई हियर दिस ब्रैकेट बाय माइनस 2। तो ब्रैकेट को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट टर्म को माइनस 2 इंटू 3 इट बिकम्स माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस x इट बिकम प्लस 2x बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, नाउ ट्राई टू राइट all terms from right side to left side. Your left side is already what? Your left side is already x square minus 2x, correct? Now this plus 2x from right side, if you transfer on left side it become minus 2x. This constant term minus 6 on right side, if you transfer in left side it become plus 6. What remain on right side? Nothing, means 0. Okay, now this x square as it, this minus 2x or minus 2x it becomes minus 4x, this plus 6 as it is equal to 0, and we get here x square minus 4x plus 6 is equal to 0, and it is in the form of standard form of quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0। और ये इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया कि नहीं? यस, बिकॉज here it is a this equation containing a quadratic polynomial। इस इक्वेशन में ये जो polynomial है ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि उसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक polynomial है और इक्वेशन में क्वाड्रेटिक polynomial होने के कारण दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई योर गिवन इक्वेशन इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर x square minus 2x is equal to minus 2 in bracket 3 minus x is also quadratic equation. Okay, so therefore given equation is also quadratic equation। तो ये आपका quadratic equation है। Now next example number 3, equation is given x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3। Now here simplify it, that means first we have to multiply in left side there is a product of two bracket, on right side also there is a product of two bracket, we can first take the product on both side then transfer। now here on the left side there is a product of two bracket, okay, on left side there is a product of two bracket and we can use here your identity number 4। हमने आइडेंटिटी नंबर 4 8 क्लास में पढ़ा है, 7 8 से पढ़ रहे हैं हम लोग। ये आइडेंटिटी हमारे पास है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी नंबर 4? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये इनका ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या होता है? इट प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ओके, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। दैट मीन्स व्हाट? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये दोनों ब्रैकेट में आपका फर्स्ट टर्म जो है सेम है और दोनों में सेकंड टर्म जो है डिफरेंट अलग अलग है। तो ये प्रोडक्ट करते समय कैसा करना है? इट इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, जो सेम टाइम है फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर करना है, प्लस ये ब्रैकेट में जो है यहाँ पे दोनों सेकंड टर्म का जोड़ करना है। सेकंड टर्म का क्या करना है? जोड़ करना है, इनटू उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है इनटू एक्स, प्लस यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है आपकी उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसी तरह हम लोग ये जो फोर्थ आइडेंटिटी उसका यूज हम लोग दोनों साइड में कर सकते हैं। तो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी ऑन बोथ साइड। तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रोडक्ट। सी हियर ऑन अ लेफ्ट साइड x minus 2 into x plus 1, if you compare with fourth identity then tell me here x is here x, what is value of a? यहाँ पे यदि हम लोग वो आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए आपका यहाँ पे है -2 है,
और वैल्यू ऑफ बी आपका 1 है। ओके, उस आइडेंटिटी का यूज करके ये जो प्रोडक्ट हम लोग यदि करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म से में x, सेकंड टर्म्स डिफरेंस है, फर्स्ट ब्रैकेट में -2 है, सेकंड में +1 है, तो उस आइडेंटिटी का यूज किया तो दिस स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट टर्म आपका x है, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होता है, सेकंड टर्म का जोड़ होता है, तो सेकंड टर्म आपकी फर्स्ट ब्रैकेट में -2 + 1, ये सेकंड टर्म का जोड़ हो गया इनटू फर्स्ट टर्म यानी कि x प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म यानी कि -2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, जिसे एक्स स्क्वायर एज इट, यहाँ पे +2 sorry -2 और +1, this become -1 and -1 into x is here, this become -x and -1 into x means -x. Now here this product is -2 into 1, product is -2, so plus minus become -2. Okay, so we get here left side is your x square minus x minus 2. So we get left side product of these two bracket is what, x square minus x minus 2, ये मिल गया हमें. Okay, so this is the product of left side. Same way we will find the product on right side. तो राइट साइड में भी हम लोग उसी आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. नाउ टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर, एक्स का वैल्यू तो एक्स है, वैल्यू ऑफ ए इज हियर -1, value of b is here +3. Okay, now product first term से में product square of the first term means x square plus bracket में क्या होता है, sum of two terms, second terms, तो second term आपकी first bracket में -1 plus second term आपकी second bracket की 3 into first term से multiply करना है यानी कि x है, plus product of the second term means -1 into 3. Simplify कर दे, this x square as it. Okay, now here -1 plus 3, what is sum, it becomes 2 plus 2, so this is +2 into x यानी कि +2x. here product of -1 into 3 is -3 and it become plus minus become minus, here this product is -3, so we get right side is x square plus 2x minus 3. तो आपका ये right side आता है x square plus 2x plus 3. in this way we will find here product of two bracket by using fourth identity. तो fourth identity का यूज करके हमने ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में किया है x स्क्वायर minus x minus 2 और राइट साइड में x स्क्वायर plus 2x minus 3. ओके, नाउ ट्रांसफर ऑल टर्म्स फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड की ऑलरेडी 3 टर्म्स आपकी है, x स्क्वायर -x minus 2. अभी राइट साइड की ये x स्क्वायर टर्म जो है हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो इट बिकम्स -x स्क्वायर, दिस +2x ट्रांसफर करने के बाद इट बिकम -2x -3 बिकम +3 ऑन इक्वल टू व्हाट रिमेन 0. नाउ सी हियर फ्रेंड, दिस x स्क्वायर प्लस और -x स्क्वायर इट कैंसल, राइट. नाउ दिस -x और -2x it becomes what, -3x. now constant term, this constant term is -2 or +3, -2 plus 3 it becomes what, +1, -2 or it +3 it become +1, -3x plus 1 is equal to 0. okay, we get here -3x plus 1 is equal to 0. लेकिन जनरली क्या होता है, फर्स्ट टर्म को साइन हम लोग पॉजिटिव देते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू दिस इक्वेशन बाय -1. -1 से यदि हम लोग थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सभी टर्म का साइन चेंज होता है. तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम +3x, ये आपका +3x हो गया. ये +1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम -1 इज इक्वल टू राइट साइड में 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा. सो वी गेट हियर 3x minus 1 is equal to 0. So we get here equation 3x minus 1 is equal to 0. And see here, this is the equation, but not a quadratic equation. Why not quadratic? Because this equation containing a polynomial 3x minus 1 and it is a linear, it is not a quadratic. इस इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और वी कैन से इन अनदर वर्ड आल्सो वी कैन से this is not equation in the form of
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है. सो न होने के कारण दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. That means your given equation is also not a quadratic equation. Hence, the given equation is not a quadratic equation. So, in this way, we will check whether given equation is quadratic or not. इसी तरह हम लोग कोई भी इक्वेशन जो दिया गया इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हम लोग इसी तरह हम लोग आसानी से बोल सकते हैं. तो इसलिए पहले क्या करूँगा फ्रेंड्स, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. पहला काम है आप लोग उस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि वहाँ पे कोई ब्रैकेट का एक्सपेंशन होगा या प्रोडक्ट होगा, तो वो हम लोग करना है, सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद ट्रांसफर ऑल टर्म फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. राइट साइड की सभी टर्म जो है लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है और उसके राइट साइड 0 बनाना है. ट्रांसफर करने के बाद वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो इक्वेशन हमें मिलेगा, जैसा कि इक्वेशन 2 में हमें इक्वेशन मिला था, इक्वेशन 3 में है ये हमें इक्वेशन मिला था. ओके, फिर बाद में ये जो इक्वेशन हमें मिलने वाला है वो हम लोग ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना है. तो ये जो इक्वेशन हमें मिले ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं देखना है. यानी कि उसमें जो इक्वेशन मिलता है उसमें जो कंटेनिंग पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं. क्वाड्रेटिक मींस उसका डिग्री 2 है या नहीं. यदि उसका डिग्री 2 है या उसमें जो इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक. एंड नहीं है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक. तो इन दिस वे वी विल चेक. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी ये जो सिचुएशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. सो योर फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाट? नाउ सी फर्स्ट सिचुएशन, the area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर. the length of important condition is what? The length of plot in meter is 1 more than twice the breadth. ये जो लेंथ है क्या है? 1 more than twice the breadth, यानी कि ब्रेड का ट्वाइस करके उसमें 1 ऐड करने के बाद लेंथ मिलता है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. यहाँ पे हमें सपोज लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने की आवश्यकता है. तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically? That means in the form of quadratic equation. So in this situation, two things are unknown. Which are the two things? Length and breadth. But we form here quadratic equation, and we know that quadratic equation containing only one variable. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल होता है और यहाँ पे ओनली वन कंडीशन दिया है. लीनियर इक्वेशन में हमने देखा था वहां पे भी टू थिंग्स आर अननोन थी, लेकिन वहां पे दो कंडीशन दी जाती थी. तो इसलिए हम लोग वहां पे दो वेरिएबल का यूज करते थे. यहाँ पे एक ही कंडीशन है. क्या कंडीशन है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, ये जो है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड. लेंथ जो है ब्रेड से उसका 2 टाइम से एक से ज्यादा है. ओके, तो ये कंडीशन दिया गया है. तो यहाँ पे इन दिस एग्जांपल लेंथ इज कंपेयर, ये जो लेंथ है किसके साथ कंपेयर किया गया है? ब्रेड के साथ कंपेयर किया गया है. और जिसके साथ कंपेयर किया जाता है उसके बारे में हम लोग रिप्रेजेंट करना है. कोई भी एक वेरिएबल एक्स ले सकते हैं, वाई जेड, एनी वेरिएबल. तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, ब्रेड को रिप्रेजेंट करना होगा कोई भी एक वेरिएबल से. ओके, एंड ट्राई टू राइट अनदर थिंग्स. यहाँ पे ये वन जो थिंग है ब्रेड हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, और उससे हम लोग लेंथ जो है वो हमने जो एज्यूम किया है रिप्रेजेंट किया है उसके फॉर्म में वी विल राइट अनदर थिंग यानी कि लेंथ. ओके, और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर. ओके, तो फ्रेंड्स in this example two things are unknown but one is compared with another. So we can represent the thing which is compare
यहाँ पे जो जिससे कंपेयर किया जाता है उसके बारे में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड के साथ कंपेयर किया गया है, सो वी विल रिप्रेजेंट ब्रेड बाय द लेटर एक्स। तो लेट अस ब्रेड ऑफ द प्लॉट इज एक्स, तो हम लोग ब्रेड ऑफ प्लॉट एक्स मान लिया। सपोज ब्रेड ऑफ द प्लॉट इज एक्स, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड। ब्रेड हमने एक्स मान लिया है, तो उसका ट्वाइस कितना होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट बिकम्स 2x। मोर देन 1 यानी कि x से ज्यादा यानी कि +1, सो योर लेंथ बिकम व्हाट, 2x + 1। ये लेंथ भी हम लोग ये x के फॉर्म में लिखना है, सो योर लेंथ इज व्हाट, 2x + 1। सो हेंस लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2x + 1 मीटर। ब्रेथ हमने x मान लिया था, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज द ब्रेड। तो यहाँ पे लेंथ की कंपैरिजन ब्रेड से की गई है, तो जिससे कंपैरिजन की जाती है उसके बारे में हम लोग लेटर या वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इस एग्जांपल हम लोग ब्रेड्थ रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। तो सपोज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स मीटर मान लिया। अभी अकॉर्डिंग अभी ये जो लेंथ है ब्रेड से कंपेयर किया गया है और ब्रेड हमने मान लिया एक्स में, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ जो है वो ब्रेड के फॉर्म में यानी कि एक्स के फॉर्म में लिखेंगे यूजिंग दिस कंडीशन। तो लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड। तो ब्रेड हमने एक्स मान लिया है, तो उसका ट्वाइस कितना होगा, 2x, डबल यानी कि डबल या ट्वाइस 2x होगा, और प्लस मोर देन 1 यानी कि +1। सो योर लेंथ बिकम व्हाट, 2x + 1. So therefore length of the plot is 2x + 1 meter. Okay. Now we know that formula of area of rectangle. Area of rectangle का formula पता है हमें क्या है, length into breadth. Area of rectangle is length into breadth. Put here value. Area of rectangle already दिया गया है 528 is equal to length. Length आपका है 2x + 1 और breadth आपका x. तो 2x + 1 into x, या पहले हमने breadth लिखा मल्टीप्लिकेशन में, इट इज अ कॉम्पिटिटिव, सो x इंटू 2x + 1, x इंटू 2x, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या ब्रेड्थ इंटू लेंथ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ब्रेड्थ x था इंटू लेंथ 2x + 1। ओके, नाउ वी गेट हियर इक्वेशन। नाउ ट्राई टू राइट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, यानी कि क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग लेफ्ट साइड में ये जो है x से इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये राइट साइड यूर 528 एज इट, राइट साइड x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 2x, इट बिकम 2x²। ओके, नाउ x इंटू 1 इज x। नाउ ये जो 528 है हम लोग अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो योर लेफ्ट साइड होगी 0 इज इक्वल टू राइट साइड योर 2x एज इट प्लस x एज इट, और ये माइनस, ये 528 हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं लेफ्ट से राइट में, तो इट बिकम्स माइनस 528। अभी हम लोग साइड इंटरचेंज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ्ट में। तो ये जो राइट साइड लेफ्ट में लिखा तो इट बिकम्स 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू योर, ये जो लेफ्ट साइड था 0 और राइट साइड में लिखा तो इट इज 0, एंड दिस इज अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x²। और ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में इक्वेशन है। यदि कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका ये 2, b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब 1 होता है, सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ b इज 1, एंड c इज कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज माइनस 528। So that means this equation is in the form of x² plus bx plus c is equal to 0. तो ये फॉर्म में आ गया। So we get a here quadratic equation is what, x² plus x minus 528 is equal to 0. So we get required quadratic equation 2x² plus x minus 528 is equal to 0 is your required quadratic equation. This is your required quadratic equation. Okay, so in this way we will form a quadratic equation from the given situation. Okay, now we will see one more situation. Second is product of two consecutive positive integer is 306. Product of two consecutive positive integer is 306.
वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो यहाँ पे ये दोनों इंटीजर हमें पता नहीं, ये यहाँ पे फाइंड करने की आवश्यकता है। तो ये हमें एक्सप्रेस करना है इक्वेशन के फॉर्म में। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज अगेन सिचुएशन इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड. We have to convert it in the mathematical language. Mathematical language means we have to transfer it into the equation form. So how to form? So in this example here also two things are unknown. That means two positive integers. Two positive integers are unknown. Okay. If we consider any one, if we take, if you know any one integer, then next positive integer will be more than one. जो एक यदि हम लोग एक पता है तो दूसरा क्या होगा, आगे वाले जो प्रीवियस हमें पता है उससे एक से ज्यादा होता है। तो एक यदि पता है तो दूसरा हमें पता हो सकता है। तो एक अननोन जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय लेटर एक्स, और नेक्स्ट क्या होगा, इससे वन से ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा एक से ज्यादा। देखिए 3, 4, 5, 6 so on, these are the positive integers and these are the consecutive. 3, 4 या 4, 5 या 5, 6 these are the consecutive means लगत वाले। तो ये consecutive लगत इंटीजर्स है। तो 3 और 4, पहला 3 है दूसरा 4 है, यानी कि ये जो है प्रीवियस से +1 है। 4, 5 यदि लेते हैं तो सेकंड जो है ये प्रीवियस से +1 है। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर होता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में जो सेकंड होता है वो प्रीवियस वाला से +1 होता है। तो इसलिए हम लोग दोनों पॉजिटिव इंटीजर, सपोज पहला x मान दिया तो दूसरा आपका क्या होगा x + 1। तो सपोज कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। नाउ कंडीशन क्या दिया है, इट इज गिवन दैट देयर प्रोडक्ट इज 306। ये दोनों जो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है उनका दोनों का प्रोडक्ट 306 है। तो उनका दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो यानी कि फर्स्ट नंबर आपका x इंटू सेकंड x + 1 इज इक्वल टू 306। ओके, now try to write in simplest form. Okay, तो लेफ्ट साइड में we multiply this bracket by x, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x into x it becomes x square, x into 1 it becomes x। ये 306 राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो it becomes -306 is equal to what remain on right side, nothing, means 0। so we get x square plus x minus 306 is equal to 0। so we get a quadratic equation। तो इसी तरह हम लोग ये जो सिचुएशन है उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। इसी तरह हम बना सकते हैं वन मोर एग्जांपल, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है एक कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से 400 किलोमीटर डिस्टेंस जा रही है, ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से यदि कम करते हैं तो क्या होता है, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर, तो 3 घंटा उसको ज्यादा समय लगता है टू कवर द सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटा ज्यादा लगता है। यदि ट्रेन ने उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम करती है तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगता है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे स्पीड, ट्रेन का स्पीड, हमें ओरिजिनल स्पीड जो था वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पता नहीं है, तो दिस इज अननोन थिंग। सो वी कैन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोगों को पता नहीं है, वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x किलोमीटर पर आवर से। सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर हमने मान दिया। ओके, ओरिजिनल स्पीड उसका x किलोमीटर पर आवर है, और वो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस इज योर 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर है, स्पीड हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अभी हमारे पास फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम लोग टाइम का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ये टाइम जो इधर ट्रांसफर किया तो न्यूमरेटर में आ गया, और यस हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो डिनोमिनेटर आएगा। तो वी गेट अ फॉर्मूला फॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वी गेट अ फॉर्मूला फॉर टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो फॉर्मूला फॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, तो अभी ये जो आपका डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने x किलोमीटर पर मान लिया है, तो ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है।
So time taken to cover 480 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस, फॉर्मूला हमारे पास है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 480 है, स्पीड हमने x मान दिया है, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगेगा? 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x, 480 अपॉन x आवर्स, इतना समय लगेगा, इतना आवर्स लगने वाला है। यदि x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जाती है तो ट्रेन को कितना समय लगने वाला है? 480 अपॉन x आवर्स। ओके, अभी क्या किया, स्पीड कम कर लिया है, लेस कर लिया है, कितने से? 8 किलोमीटर पर आवर से। पहला ओरिजिनल स्पीड आपका x था, 8 से कम कर लिया, तो ट्रेन का स्पीड कितना होगा? x में से 8 घटाना है, यानी कि x माइनस 8। सो देयरफॉर if speed of the train is decreased by 8 kilometer, then speed of the train will be x minus 8 kilometer per hour. Second condition में let the speed of the train will be x minus 8 kilometer per hour. Okay, अभी वही सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर और x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, कम करने के बाद ये स्पीड, तब कितना समय लगेगा? Therefore the time taken to travel 408 kilometer is equal to given the train takes 3 hours to cover the same distance, will take 3 hour more, है ना? तो ठीक है, पहले x माइनस 8 किलोमीटर से जाती है 400, तब ट्रेन को कितना समय लगेगा? 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, तब ट्रेन को इतना समय लगने वाला है। यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम करते, यानी कि ट्रेन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से जाएगी, तब उसको समय लगने वाला है 480 अपॉन x माइनस 8। ओके, लेकिन हमें कंडीशन क्या दिया गया है कि ये जो स्पीड कम करने के बाद जो समय लग रहा है वो जो पहला समय था उससे 3 घंटा ज्यादा है, 3 घंटा ज्यादा है, यानी कि ये जो टाइम है, ये टाइम, ये 480 अपॉन x प्लस 8 में ये इसमें क्या करना होगा? 3 घंटा सबट्रैक्ट करना होगा, या देयरफॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? ये जो डिस्टेंस पहला जो लगा था x, उससे 3 घंटा ज्यादा है, यानी कि 480 अपॉन x इज इक्वल 480 अपॉन x प्लस 3 आवर्स। स्पीड कम करने के बाद जो समय लगने वाला है वो ये स्पीड से 3 घंटा ज्यादा है। ये जो पहला ओरिजिनल स्पीड में जितना समय लग रहा था उससे 3 घंटा ज्यादा है, यानी कि 480 अपॉन x प्लस 3। ओके, हाँ, बट एक्चुअली स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड x माइनस 8 है। ओके, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला, ओके, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग। स्पीड x माइनस 8 है, टाइम है 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू योर डिस्टेंस 480। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफाइंग, यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में, तो x या फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 480 अपॉन x, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट टर्म 480 अपॉन x है, उसको x से मल्टीप्लाई किया तो x कैंसल, वी गेट 480। ओके, नाउ x इंटू 3 इट बिकम प्लस 3x। अभी माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x, तो इट बिकम्स व्हाट? माइनस 8 इंटू 480 इट बिकम्स माइनस 3840 अपॉन x एज इट। ओके, एंड इज इक्वल टू राइट साइड, और माइनस 8 into 3 it become minus 24, right side 480 as it. Transfer all this thing from right side, yeah, here this 480 from both side cancel, what remain? 3x minus 3840 upon x, ये जो 24 है उधर ट्रांसफर किया, it becomes plus 24. Now here multiply this equation throughout by x, हम लोग क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में x से रिमूव करना है, तो x से मल्टीप्लाई किया तो 3x इंटू एक्स इट बिकम 3x स्क्वायर, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस 3840 एज इट, और ये राइट साइड में 24 को x से मल्टीप्लाई किया तो 24x होगा, और इधर ट्रांसफर किया तो इट बिकम्स माइनस 24। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म अगेन। नाउ हियर मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x,
x से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 3x स्क्वायर, या सेकंड टर्म को x से मल्टीप्लाई किया तो दिस x फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, ओनली 3840, और राइट साइड में 24 को x से मल्टीप्लाई किया तो 24x। नाउ ये 24x हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो योर दिस 3x स्क्वायर लेफ्ट साइड एज इट, दिस 24x बिकम माइनस 24x, और ये माइनस 3840 एज इट इज इक्वल टू 0। सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेकिन here also 3 is common throughout, so we can divide this equation by 3। 3 हर एक टर्म में कॉमन है तो 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद वी गेट x स्क्वायर, या 3 से डिवाइड किया तो 8x, माइनस यहाँ से 3 डिवाइड किया तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 बच गया 24, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 8x minus 1280। So in this way we form here quadratic equation. So okay friends, if you are unable to understand, then you should ask me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 94204398784. Okay friends, goodbye, have a good day, thank you.